Hello everyone, welcome to the fourth lecture of Signals and Systems. I am Avdesh Gupta, Assistant Professor in Department of Electronics Engineering, MITS Gwalior. So we have discussed what is signals. In the unit 1, we are actually discussing about the what is signal and we have discussed the signal is a function, quantity which gives you information of any physical phenomenon, okay, a process. So it should be the function of one or more than one independent variable. This is necessary. Okay. So what are the course outcomes? What you will be able to learn, okay, after studying this course. So you will be able to explain the basic signals and their mathematical descriptions, which we are studying in Unit 1. Okay, we have learned uh, exponential signals, signum functions, gate pulse, rectangular pulse, unit steps, and different functions and their mathematical equations. You will be able to analyze the spectral characteristics of the continuous time and discrete time signals. You will be able to analyze the properties of continuous time and discrete time signals. You will be able to analyze the properties of LTI continuous time and discrete time systems using transformation like Z transform and Laplace transform. You will be able to calculate the convolution and the response of continuous time and discrete time systems with respect to input. So these are the course outcome of the signal system. If you study this course, you will be able to perform these things. Okay. Sixth one, you will be able to design block diagram of LTI system corresponding to given differential or difference equation. So till now we have studied about the basic signals. Now we are moving to our next topic, that is signal operations. Okay, what are the different operations that we can perform on the signal? That operations, these are the signal processing techniques. Okay, we are studying about signal processing. Okay, so there are different operations that we can perform on the signal. So first thing is that operation that we can perform on the independent variable. Independent variable means that if the function is like this, x of t, so x is dependent variable and it is dependent on t, but t is independent variable. Okay, so what we can perform in this argument, okay, in this bracket, and if we perform this here something, that is amplitude operation, that is amplitude per operation. Okay, and if we perform here something, that is independent variable operation. Okay, so first operation is time shifting, second is time scaling, third is time inversion or reflection, and fourth is a mix of this time shifting, time scaling, and inversion. Okay, so let's move to first thing. What is time shifting? Time shifting, if suppose this is xt, a signal is given to you which looks like this. Okay, this is 0 before minus 1, then minus 1 to 1, there is rising and it is constant to 2, and then it goes to 0. Okay, now if t naught is any positive quantity, then signal is
if we draw xt minus t naught, okay, suppose I am drawing xt minus 1, t naught we have considered is 1, okay, so xt minus t naught क्या होगा, यानी xt minus 1 आप ड्रॉ कर रहे हो, xt minus 1. So t minus 1 is nothing but it is shifted right by 1. Every point is shifted by 1. तो ये -1 वाला जो इवेंट है वो 0 पे चला जाएगा, 0 वाला जो होगा वो 1 पे आ जाएगा, 1 वाला जो इवेंट है वो 2 पे आ जाएगा, ओके। -1 वाला इवेंट 0 पे आ गया, 0 वाला इवेंट 1 पे आ गया, 1 वाला इवेंट 2 पे आ गया, ओके। सो इन दिस वे entire signal is right shifted by 1, okay. So this is right shifted version. If we draw xt minus 1, that means वो right shift होगा, okay, for any t naught. अगर यहाँ पे xt minus 2 होता है तो वो 2 से right shift हो जाता है, तो अगर -1 तो मैं 2 से शिफ्ट करूंगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा +1 पे। 0 को अगर 2 से राइट शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, राइट शिफ्ट मूव कर रहा है, तो 0 से ये 2 पे चला जाएगा, +1 पॉइंट कहाँ चला जाएगा, +3 पे, ओके, अगर मैं xt minus 2 ड्रॉ करूं, ओके। तो सिग्नल इज राइट शिफ्टेड वर्जन ऑफ xt by t naught इज नोन एज डिले, ठीक है। डिले क्यों कहते हैं हम इसे, कि जो इवेंट 0 पे हो रहा है, t 0 पे हो रहा है, अब वो इवेंट कहाँ हो रहा है, t 1 पे हो रहा है। जिस इवेंट को t 1 पे होना था वो एक t 2 पे हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, वर्क लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, ओके। तो इसलिए इसका नाम होता है डिले। तो xt minus 1 अगर आपसे पूछे कि डिले है, xt का डिले वर्जन होगा या एडवांस वर्जन होगा, तो क्या कहेंगे आप, डिले वर्जन होगा। जिस इवेंट को 0 पे होना था वो इवेंट अब 1 सेकंड पे होगा, जिस इवेंट को 1 पे होना था वो 2 सेकंड पे होगा, ओके। t 2 पे हो रहा है, दिस इज डिले। ना अगर t प्लस टी नॉट है, दैट मीन्स t नॉट इक्वल टू 1 रखते हैं, तो ये क्या इक्वेशन है, x t प्लस 1 है, ठीक है, x t प्लस 1 दैट विल लेफ्ट शिफ्ट द सिग्नल। तो अगर मैं सिग्नल xt गिवन है और आपको xt प्लस 1 बनाना है, तो क्या इस पूरे सिग्नल को इस डायरेक्शन में ले जाएगा, कितने अमाउंट से, +1 से। कीप दिस इन माइंड, एम्पलीट्यूड 2 था और अभी भी 2 है, इन सारे ऑपरेशन से एम्पलीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसीलिए इसे टाइमिंग ऑपरेशन कहते हैं। यहाँ पे टाइम में ऑपरेशन है, ना कि एम्पलीट्यूड में ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, दिस इज t एक्सिस। तो ये क्या हो गया, पूरे से लेफ्ट शिफ्ट हो गया, वर्जन ऑफ xt है, ठीक है। तो अगर xt प्लस 1 हम ड्रॉ करेंगे तो xt प्लस 1 क्या होता है, लेफ्ट साइडेड शिफ्टेड वर्जन ऑफ xt, ठीक है। तो जिस इवेंट को 0 पे होना था, ये रहा मेरा मेन सिग्नल, जिस इवेंट को 0 पे होना था वो अब कहाँ हो रहा है, -1 पे हो रहा था। जिस इवेंट को 1 पे होना था वो इवेंट क्या हो रहा है, लेट मी जूम इन, तो जिस इवेंट को 1 पे होना था वो कहाँ हो रहा है, 0 पे हो रहा है, यानी वो 1 सेकेंड एडवांस में हो रहा है, पहले हो रहा है, तो हेंस द नेम गिवन इज एडवांस, ओके, दिस इज एडवांस, ओके। तो ये क्या होगा, xt प्लस 1 आपको बनाना है तो लेफ्ट साइड मूव करना है, xt माइनस 1 बनाना है तो आपको राइट साइड मूव करना है, ओके। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स से हमने कंक्लूड किया, ओके। तो इसका और एग्जांपल देखते हैं।
सपोज ये कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिख रहा है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है और डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट पे वैल्यूज हैं, इसलिए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। ओके, तो देखो -2 पे इसकी वैल्यू 0 है, -2 से -1 कोई वैल्यू नहीं है, फिर -1 पे इसकी वैल्यू 1 है, 0 पे वैल्यू 2 है, 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे वैल्यू -1 है एंड 3 पे वैल्यू फिर 0 है। इस तरह से बबल फॉर्म में दिखाया जाता है। ओके, ये इसका वेक्टर इक्विवेलेंट है। क्या है, देखो मैंने वेक्टर इक्विवेलेंट रखा है। ओके, तो इसको अभी नहीं देखते, अभी हम इस ग्राफ की बात करते हैं। ये आपको गिवन है, अब आपको क्या ड्रॉ करना है, x ऑफ n-2 ड्रॉ करना। ठीक है, तो x ऑफ n-2 कैसा दिखेगा, हमने क्या बताया था, वो n-2 मतलब 2 से शिफ्ट हो जाएगा किधर, राइट साइड। ठीक है, तो ये राइट साइड होगा, जो जिस इवेंट को 0 पे होना था वो अब कहाँ होगा, 2 पे होगा। देखो ये 2 पे हो रहा है, जिस इवेंट को -1 पे होना था वो कहाँ होगा, अब वो +1 पे होगा। जिस इवेंट को 0 पे होना था, जिस इवेंट को 1 पे होना था वो अब 3 पे होगा। जिस इवेंट को 2 पे होना था वो अब 4 पे हो रहा है। ओके, तो इंटायर सिग्नल जो होता है वो शिफ्ट कर गया राइट में, xn-2 का ये मतलब होता है। ओके, देखो अब आप कैसे लिखोगे, x ऑफ n वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हमने बताया था सारी वैल्यूज लिखो जो जो गिवन है, 1 2 1 एंड -1। ओके, और जो 0th पोजीशन होता है उसके नीचे हम एरो लगाते हैं। देखो ये बताता है क्या कि ये x ऑफ 0 है, x ऑफ 0 है। ओके, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, दिस इज x ऑफ 0th पोजीशन। तो अब क्या क्या वैल्यू हो गई, तो हम अब वैल्यू दिखा सकते हैं 1 0 1 2 1 -1। ये क्या है, x ऑफ 0 पे अब वैल्यू क्या आ गई, x ऑफ 0 पे वैल्यू अब 0 आ गई। ओके, x ऑफ 0 पे 0 आ गई और ये 1 2 1 एंड -1 हो गया। ओके, तो ये सिग्नल है। अब इस चीज को हम x ऑफ n+2 पे देखते हैं। x ऑफ n+2 क्या होगा, x ऑफ n+2 यानी इस सिग्नल को ये जो सिग्नल है x ऑफ n अपना, ठीक है, ये जो x ऑफ n है इसको हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है। ओके, ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा कितने से, 2 से। तो जो -1 वाला है वो लेफ्ट शिफ्ट होके क्या आएगा, क्योंकि लेफ्ट मूव कर रहा है तो -2 -3 पे चला जाएगा। 0 वाला जो पॉइंट है, 0 वाला जो पॉइंट है वो किधर जाएगा, -1 और फिर -2 पे, दो लेफ्ट में जंप करना है। जो 1 वाला पॉइंट है वो 0 और -1 पे आ जाएगा। देन 2 वाला पॉइंट किधर जंप करेगा, 2 बार जंप लेफ्ट साइड कराना है तो वो 0 पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये सिग्नल ड्रॉ हो गया। ओके, तो अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पे लगा है यानी ये x ऑफ 0 है। ओके, दिस इज x ऑफ 0 और ये क्या है, x ऑफ -1, क्या है x ऑफ -2, ये x ऑफ माइनस, देखो x ऑफ -1 क्या है, 1 वैल्यू है, x ऑफ -2 2, x ऑफ -3 1 और फर्दर वो 0 हो जा रहे हैं सारे। ओके, तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म में भी सिग्नल्स को लिखा जाता है। सो इससे पहले और आगे बढ़े,
इसको हम डेस्मॉस पे करके देखते हैं। इसे भी हम डेस्मॉस पे कर सकते हैं, तो मूव करते हैं डेस्मॉस पे। ठीक है, तो बहुत सारे सिग्नल है, लेकिन एक ऐसा सिग्नल चाहिए जिसमें एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ऐसा है कौन सा हमारे पास, सपोज करो एक ले लेते हैं S1T। ठीक है, S1T ले लिया हमने, सिग्नम को ले लेते हैं, दैट इज SIGN। ठीक है, कीप दिस इन माइंड, यहाँ पे भले SIGN है, लेकिन असल में जो नोटेशन यूज होता है वो SGN होता है। ठीक है, सिग्नम का नोटेशन जो होता है वो होता है SIGN T। तो ये बन गया सिग्नम। ओके, तो ये बन गया सिग्नम T ना। एक S2T ले लेते हैं, S2T इक्वल्स टू सिग्नम T-1। तो किधर शिफ्ट हुआ सिग्नम? ओरिजिनल सिग्नल कहाँ था? यहाँ से जीरो क्रॉसिंग यहाँ थी, लेकिन अभी किधर हो गया? 1 पे शिफ्ट हो गया। इसको जूम करके देख सकते हैं, ये पूरा सिग्नल कहाँ शिफ्ट हो गया? राइट साइड बाई 1। S3T थर्ड पॉइंट इज इक्वल टू सिग्नम T+1। कहाँ गया? लेफ्ट में। ठीक है, ये आपको नजर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्लू वन क्या है? अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये ब्लू वन जो है ये सिग्नम T है। ठीक है, अब सिग्नम T+1 इसको बंद करके सिग्नम T-1 देखो कहाँ गया? राइट शिफ्टेड। इसको क्लोज करो, सिग्नम T+1 लेफ्ट शिफ्टेड बाई 1। तो ये ऑपरेशन होता है सिग्नम फंक्शन का। ओके, इज इट क्लियर? ओके, इस तरह से हम टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो T-1 अगर कह रहा है दैट मीन्स राइट में जा रहा है। ओके, T+1 लेफ्ट में जा रहा है। ठीक है, अभी इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊँ, डोंट वरी, सब ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। okay. अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे, दैट इज टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। टाइम स्केलिंग क्या है कि अगर कोई एक फंक्शन आपको गिवन है, x ऑफ t आपको गिवन है, ठीक है, कैसा भी शेप हो सकता है, x ऑफ t या x ऑफ n, दोनों पे लागू है। तो हम एग्जांपल जो बता रहे हैं वो xt से बता रहे हैं, और एग्जांपल जो ले रहे हैं सॉल्व करने के लिए वो x ऑफ n पे ले रहे हैं, ये बताने के लिए कि दोनों पे अप्लाई, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दोनों पे। ठीक है ना, yt क्या है? x ऑफ at जो होगा इसको हम कहते हैं स्केल्ड वर्जन। ठीक है, टाइम स्केलिंग, टाइम में देखो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। स्केल मतलब क्या? स्केलिंग मतलब समथिंग दैट मल्टीप्लाई। एम्पलीट्यूड स्केलिंग मतलब बाहर कहीं कुछ मल्टीप्लाई हुआ था तो ये एम्पलीट्यूड स्केल करता है, लेकिन टाइम में मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज टाइम स्केलिंग। ओके, तो टाइम स्केलिंग में क्या है? दो ऑपरेशन है। अगर ए जो है ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी है तो सिग्नल जो होगा वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस सिग्नल कंप्रेस मतलब सपोज इसकी विड्थ 2 है, -1 से 1 कितनी लेंथ विड्थ है? 2 है, तो ये इंटायर विड्थ जो होगी कंप्रेस होकर अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा तो ये हाफ हो जाएगी। ठीक है, कंप्रेस हो जाने मतलब जो अगर लेंथ 2 है तो वो 1 लेंथ की रह जाएगी। ओके, अभी देखते हैं इसका। ए अगर लेस देन 1 है तो वो एक्सपैंड करेगा। ठीक है, तो अगर ए सपोज करो हाफ है तो हाफ होने के केस में ये क्वांटिटी कहाँ चली जाएगी? माइनस ये जो लेंथ जो विड्थ है ओवरऑल टाइम में -1 से 1 यानी 2 है, अब वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है,
तो एक्स टी बाई टू हम ड्रॉ करेंगे। अगर एक्स टी सपोज इसी तरह दिया, जो हमने एग्जांपल लिया, हम सारे केसेस को इसी एग्जांपल से डिफाइन करेंगे। इसी तरह का एक फंक्शन ले लेंगे। ओके, एक फंक्शन हमने जो लिया था, इसी से हमने डिले और एडवांस डिफाइन किया था। अब इसी से हम कंप्रेशन और एक्सपेंशन डिफाइन करेंगे। तो एक्स टी बाई टू क्या होगा? ठीक है, एक्स टी बाई टू क्या है? तो टी बाई टू जहां पे जाएगा एक्स टी बाई टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सब डबल हो जाएंगे। 1 वाली वैल्यू डबल होके कहाँ पहुंचेगी? 2 पर। -1 वाली डबल होके कहाँ पहुंचेगी? -2 पे। ओके, कीप दिस इन माइंड, इन टाइमिंग ऑपरेशन से एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एम्पलीट्यूड रिमेन्स सेम। ओके, ना अगर x ऑफ 2t है, ठीक है, तो वो कैसा ड्रॉ होगा? x ऑफ 2t, xt अगर ऐसा गिवन है, ठीक है, तो x ऑफ 2t क्या होगा? कंप्रेस वर्जन, यानी -1 जो होगा इसमें डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, हर पॉइंट जो है डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो हर पॉइंट जो है डिवाइड बाई 2 हो गया। तो ये पॉइंट कहाँ गया? ये जो पॉइंट था ये यहाँ पे नेगेटिव होगा, -0.5 पे आ गया। 0 वाला पॉइंट 0 पे ही रहेगा। ओके, और 0.1 वाला पॉइंट कहाँ पहुंच गया? 0.5 पे पहुंच जाएगा। तो देखो इसका जो विड्थ था वो कितना था, इसका विड्थ कितना है? इसकी विड्थ 2 थी और इसकी विड्थ कितनी हो गई? 1 हो गई। तो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा, सिग्नल कंप्रेशन। ओके, सिग्नल कंप्रेशन जो होगा यहाँ पे ये चल रहा है। तो इसे हम यहाँ पे देखो, विड्थ कितनी थी? 2 थी, और इसकी विड्थ कितनी है? -2 से 2 4। ठीक है, यहाँ पे विड्थ कितनी है? 1, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ये विड्थ कितनी है? 2। 2 से 4 हुआ एक्सपेंशन, 2 थी विड्थ, अब क्या हो गया? 1 हो गया कंप्रेशन। ठीक है, ये है सिग्नल ऑपरेशंस, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन का।